नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, I am Dr. Muhammad Iqbal, your course instructor, Education Policy and Planning, MA Education Leadership and Management, Semester 2. Dear students, I am going to discuss with you the very important document in the history of education policy and planning of Pakistan. This is white paper, which was basically it is an evaluation program of all policies, and it was completed before the education policy 2009. So I will discuss in detail the education this white paper as an evaluation document of the education policy, national education policy 1998 and the previous all policies. Dear students, the white paper presented in December 2006. The white paper is basically the pre-planned policy paper, was prepared and disseminated in December 2006 to all stakeholders for feedback. Despite the fact that federal government had already taken policy decisions on some issues, those decisions were by no means comprehensive or perfect, and it was essential that they be dated and efforts towards a comprehensive document continue. So white paper जो है basically ये 2006 में दिसंबर में तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी कंसल्टेशन के लिए, उनकी फीडबैक के लिए प्रेजेंट किया गया, और असल में ये एक पेशखमा था नई पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी का. रिवाइज्ड वर्जन, द वाइट पेपर रिवाइज्ड वर्जन वाज प्रेजेंटेड इन February 2007. While considered views of provincial governments and input regarding financial numbers that would determine actual targets are awaited, a revised white paper has been prepared. So it incorporates a large number of useful improvements suggested by a variety of stakeholders. While the revised paper remains a pre-policy paper, and it would help further in logical discussion before the policy document is drafted. यानी पॉलिसी बनाने से पहले उन सारी चीज़ों को जो पॉलिसी के लिए बेहतरीन इश्यूज हो सकते थे उन पर फोकस करना इस वाइट पेपर का बुनियादी मकसद था. वाइट पेपर will help derive the other three documents, the revised national education policy, the strategies and implementation action plans. So ये जो है उनके लिए एक बुनियादी मदद या बेस फ्राहम करने वाला डॉक्यूमेंट था. In the previous white paper, which was presented in December 2006, was written after an extensive diagnostic and consultative stage. It was intended that subsequent policy document would also be evolutionary in nature and would fully reflect the aspirations and expectations of the people of Pakistan. यानी इसको इस तरह बनाया जाए कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो वो पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का या उनकी ज़रूरियात का या तवक्कुआत का आइनादार हो, पॉलिसी आइनादार हो. So and would facilitate the development of coordinated provincial plans within an agreed national framework. So एक कौमी फ्रेमवर्क के साथ
उसके मुताबिक जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उनके कोऑर्डिनेशन से सूबाई हुकूमतें अपने डेवलपमेंट प्रोविंशियल डेवलपमेंट प्लान्स और डेवलपमेंट प्लान्स बनाएं और विद क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इदारों की और के वाजे रोल को पहचानते हुए एंड पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड एट फेडरल लेवल, फेडरल, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्योंकि इस जो डॉक्यूमेंट में पूरे पाकिस्तान से फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, डिवीजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब माहिरीन तालीम और स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन की गई और पिछली पॉलिसियों का जायज़ा लिया गया। पॉलिसी पेपर सब्सिक्वेंट टू द रिवाइज वर्जन ऑफ द वाइट पेपर अ पॉलिसी पेपर विल बी प्रिपेयर्ड। यानी टारगेट ये था कि वाइट पेपर के बाद 2009 वाली जो पॉलिसी है उसका सब्सिक्वेंट यानी उसके बाद ये पॉलिसी पेपर बनाया जाए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2009 की पॉलिसी का प्रोसेस 2005 में शुरू हुआ और 2009 तक उसका नामा ड्राफ्ट जाके अप्रूव किया गया और उसमें इस वाइट पेपर की तरफ के लिहाज से बहुत से इनपुट और उसमें जो प्रोसेस था वो पूरे पाकिस्तान से स्टेक होल्डर्स के साथ से और कंसल्टेशंस हुई और तमाम सूबाई लेवल्स पे कॉन्फ्रेंसेस के इनपुट और फिर नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें माहिरीन तालीम के इंटरव्यूज़, उनके फीडबैक्स, उन सब को शामिल किया गया। सो दिस विल बी सबमिटेड टू कॉम्पिटेंट फोरम फॉर अप्रूवल। सो ये किया गया कि इसको कॉम्पिटेंट लेवल पे इसको पेश किया जाएगा और इट इज़ इंटेंडेड दैट पॉलिसी गोल्स एंड विजन वुड नॉट बी रिविजिटेड अंटिल एनवायरमेंटल प्रेशर्स नेसेसिटेटेड इट। यानी तय किया जाए कि जब तक एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ना देख लिया जाए तो उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ना पेश किया जाए, यानी उसके गोल्स और विजन को में जो उसको मतलब इस जो कंसल्टेशन है उसके बाद उसको पेश किया जाए, यानी इसकी कंसल्टेशन को पॉलिसी डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए। सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी पेपर स्ट्रेटजी or a set of strategies would be prepared which would be the implemented by the provinces। So जो इसके बाद जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनना था, पेपर बनना था, उसकी स्ट्रेटजीज को इस तरह तैयार किया जाता कि वो सूबों में इम्प्लीमेंट की जा सके। द रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वुड बी दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर और वफाकी हुकूमत का किरदार फैसिलिटेटर के तौर पर माना जाएगा। और यही सफ़र आप समझें कि जो 18वीं तरमीम थी उसकी तरफ एक अहम कदम था, क्योंकि 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी की का ये तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स वुड बी मेड बीइंग फुली अवेयर ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। तो उसमें जो इस पॉलिसी में और स्ट्रेटजीज में इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स थी उन पर बहुत अच्छे तरीके से गौर व फिक्र किया गया और टारगेट्स वुड बी फॉर अ प्रेडिक्टेबल टाइम फ्रेम, और जो टारगेट्स थे वो रियलिस्टिक बनाए गए और टारगेट फ्रेम प्रेडिक्टेबल यानी मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क के लिहाज से उनको हकीकत पसंदाना बनाया गया। Now implementation of plans would be prepared and implemented by the provincial and district education departments, and federal governments would only facilitate the process and would collate in a national action plan। यानी जो फाकी हुकूमत थी उसका किरदार सिर्फ मशावरत या पेश जो रहनुमाई वाला था और उसने जो अपना रोल था वो नेशनल एक्शन प्लान में उसको शामिल करना था विद कमिटेड फंडिंग बाय डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और नेशनल एक्शन प्लान के तहत वफाकी हुकूमत ने अपनी फंडिंग की कमिटमेंट की थी। बाकी जो है तालीम को सूबाई महकमों का सूबों का सूबों की एक जिम्मेदारी करार देने की तरफ ये एक पहला कदम था। डियर स्टूडेंट्स,
अब मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में इसके इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको. सो ह्यूमन हिस्ट्री दस फॉर स्टेट्स दैट नॉलेज इज़ द की ड्राइवर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ये तो एक मानी हुई हकीकत है कि किसी भी कौम ने अगर तरक्की की है तो वो तालीम के ज़रिए तरक्की हासिल की है. सो एजुकेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का बुनियादी लीवर और ड्राइवर है, विच एनेबल्स इट टू एड वैल्यूज़ ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ, और जो एक महज़ब सिविलाइज्ड लाइफ को की वैल्यू भी ऐड करती है. नॉलेज इज़ एसेंशियली to the produce of education. Only a rare and few have been endowed in history with the capacity to gain knowledge through intuition. So जो नॉलेज है वो प्रोजेक्ट एजुकेशन की प्रोजेक्ट है, और ओनली अ रेयर एंड फ्यू हैव बीन एंडोर्ड इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा नॉलेज है जो इंट्यूशन या इदराक के ज़रिए हासिल किया गया. हाँ, जो पेशवही और ये दूसरा नॉलेज है वो तो आसमानी ज़राए से नबूवत पर और इल्हाम और वही की सूरत में हासिल हुआ, या अंबिया पर वो उतरा. Societies that emphasize education have historically prospered in comparison with those who relish the comfort of ignorance. So ये एक हकीकत है कि वो माशरे जिन्होंने तालीम पर बहुत ज़्यादा तरक्की जोर दिया गया वो तारीख़ी तौर पर बहुत खुशहाल हुए एज़ कम्पेयर टू यानी उन कौमों के मुकाबले में जिन्होंने तालीम को नज़रअंदाज किया. एवर सिंस सोसाइटीज़ डेवलप इनटू स्टेट्स, और ये सोसाइटी स्टेट्स की शक्ल इख्तियार करती गई, इट हैज़ बिन द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट टू रिकग्नाइज एजुकेशन एज अ राइट ऑफ द सिटीज़न. और फिर जब ये स्टेट आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें बनी तो उन्होंने सबसे पहले तालीम को इंसान का बुनियादी हक तस्लीम किया. सो इसका बैकग्राउंड जो था, पीरियडिकली द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस्ड द एजुकेशनल नीड्स ऑफ पीपल एंड एस्पायरेशन ऑफ स्टेट in this regard. 1947, 1951, 1959, 1966, 1969, 1970, 1972, 1979 or 1972, and lastly in 1998. So dear students, जो 1947, 1951 ये तो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी. 1959 और 1966 ये कमीशंस थे, और 1969 भी 66 और 69 1969 का शरीफ कमीशन था, 1966 कमीशन था एक, और 1969 नूर खान कमीशन था, और 1970 से 1998 तक ये एजुकेशन पॉलिसीज़ थी. तो इन पॉलिसीज़ में पाकिस्तान की स्टेट ने एजुकेशन को पाकिस्तानी अवाम का बुनियादी हक तस्लीम किया. और सम ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वर रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च बट इम्प्लीमेंटेशन लेफ्ट सो मच टू बी डिज़ायर्ड दैट नॉट वन पॉलिसी अचीव्ड इट्स डिक्लेयर्ड गोल्स. तो ये एक अलमिया रहा कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसियाँ या कॉन्फ्रेंसेस थी उनकी सिफारिशात मुकम्मल तौर पर नाफिज न हो सकें, जुज़वी तौर पर उनमें कामयाबी हासिल हुई. और इस सिलसिले में जो रिसर्च कंडक्ट करने की भी की ज़रूरत ज़्यादा, यानी रिसर्चेस भी कम कंडक्ट की गई कि ये टारगेट्स क्यों हासिल नहीं हुए. लेकिन उसकी जो सबसे जो अहम वजह थी, फर्स्टली देयर वाज नो जेन्युइन वाइड स्प्रेड ओनरशिप ऑफ पॉलिसी गोल्स कि बाय द मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स थे यानी हुकूमत या उनमें वो सब जो थे वो उन्होंने इसकी ओनरशिप नहीं ली, पॉलिटिकल विल नहीं थी. सेकेंडली द स्ट्रेटजीज एंड प्लान डेवलप टू अचीव द पॉलिसी गोल्स वर अनरियलिस्टिक. जो प्लान थे वो बड़े अनरियलिस्टिक थे, वो बड़े हवाओं में खलाओं में थे, तो उनको इस तरह डेवलप किया गया कि और तो पॉलिसी जो गोल्स वो हासिल ना हो सके.
और जो फंडिंग भी इसके लिए पूरी तरह जो रिसोर्सेज ज़रूरत थी जिनकी वो भी फराहम ना किए गए। Historically, we have failed to realize that education is both for development and for social justice. यानी हम तारीखी तौर पर इसमें नाकाम हुए कि हम तालीम को तरक्की के लिए और सोशल जस्टिस के लिए पूरी अहमियत दे सके। एंड देयर इज़ नो चॉइस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्टिव्स, और इन दो ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान कोई दूसरी राय नहीं है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटिन्यूइंग रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, तो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की कमी की वजह से द स्टेट मस्ट इन्वेस्ट इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली इन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान नेशन बाय सेटिंग गोल्स। तो स्टेट ने कुछ ना कुछ गोल्स बनाए, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी की गई, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए गए और वो स्टैंडर्ड्स या वो मयारात नहीं बनाए गए जो आउटस्टैंडिंग और रॉ ह्यूमन रिसोर्सेज को के लिए फैसिलिटेट करते। और दिस कंट्री could not refine itself into the finest exponent of social and economic power that can be। तो जो पाकिस्तान हो सकता था वो एक पावर के तौर पर इसमें उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और overview processes in policy, in 2005 it was decided to review national education policy, align it to achievable targets of human development set by the government of Pakistan, and reprioritize various targets in the field of education, and to reduce conflicts and achieve a knowledge based economy permitting every individual to realize his or her innate potential fully। तो इसमें यानी पॉलिसी के जो टारगेट्स थे गवर्नमेंट ने उसके लिए 2005 में बाकायदा उनको रिविजिट और नई जो उसको नए सिरे से उनको पर गौर करने के लिए उसका इंदिया दिया, और यही बेस बना 2009 की पॉलिसी बनाने का। विजन एंड पर्पस, विजन एज एन एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल ड्राइवर and purpose as the intention of nation determine the outlook of an public policy। तो हर जो विजन होता है और पर्पस होते हैं वो हर पॉलिसी का बेसिक आउटलुक और फेस होते हैं पब्लिक पॉलिसी का, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी का। द विजन एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन बीइंग अ यूनिवर्सल कैटलिस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल अमल अंगेज होता है अफराद के लिए और कलेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ प्रोग्रेस और तरक्की के लिए एक मुश्तरका और इज्तिमाई कोशिश के तौर पर एज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल इंतहाई अहम होते हैं। वाइल अ सॉलिड विजन हैज़ नॉट बिन लैकिंग इन द पास्ट पॉलिसीज़, तो पिछली पॉलिसीज़ में विजन जो था वो इसमें लैकिंग थी, और इट हैज़ ऑलवेज बिन गवर्नेंस, मैनेजमेंट, डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट हैव फॉलन शॉर्ट। तो इस वजह से ये जो था इसके टारगेट्स में हम इम्प्लीमेंट करने में फेल हुए। सिंस एजुकेशन इज मेंट टू एड्रेस इम्पेरेटिव ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स, सो इस तरह गवर्नमेंट जो ये पॉलिसियाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स हासिल करने में पूरी तरह कामयाब न हुई। गवर्नेंस ऑफ एजुकेशन इज ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क दैट डिटर्मिन्स द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टू मीट इट्स गोल्स एंड टारगेट्स। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर that quality education is available to all without distinction or discrimination. So in Pakistan, the relations between federal and provincial governments are defined by the constitution, while those between the provinces and local governments by the respective provincial and local government ordinance. So the varieties of stakeholders demonstrate a clear lack of clarity. जो stakeholders थे वो अपनी जिम्मेदारियों से आगाह नहीं थे on the perception of these rules, in rules के बारे में, इनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। hence a clear delineation of inter-tier roles and relationships and defined demarcation of responsibility can't be postponed if we are to achieve the targets। अगर हम टारगेट हासिल करना चाहते हैं तो हम इन जिम्मेदारियों से को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उनको। सो इंटर टायर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल एजुकेशन अपीयर in the principles of policy in the federal legislative list of
द कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी ये जो एजुकेशन है वफाक और सूबों की मुश्तरका जिम्मेदारी है और कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट का हिस्सा था। द कंकरेंट लिस्ट रिकग्नाइज द complementary efforts between provincial and federal governments that are necessary to ensure harmonious delivery of state obligation across the entire federation, यानी पूरे मुल्क में सूबों और वफाक की जो मुश्तरका जिम्मेदारियाँ हैं वो उनकी मदद से सूबों वफाकी हुकूमत तमाम पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसमें एजुकेशन की जिम्मेदारी से उहदा हो सके। The role of federal government therefore would be confined within stewardship or facilitation, coordination and ensuring standards of national education nationally. A national policy formulation will always need to moderate it at federal level with the direct and continuing consultation with provinces and local governments. तो ये एक तय किया गया कि वफाकी हुकूमत ही पॉलिसी साजी का काम करेगी सूबों और लोकल गवर्नमेंट्स की कंसल्टेशन से, मुशावरत से। और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन विद इन फेडरल गवर्नमेंट इज़ अनफॉर्चुनेटली स्कैटर्ड विद half a dozen ministerial platform pursuing initiatives in a variety of sectors of education. Higher education is exclusively and autonomously dealt with the Higher Education Commission. So inclusive education, special education in dealt by separate ministry, science and technology being dealt by the Ministry of Science and Technology, and technical education, vocational training is being pursued in NAVTEC, which resides in Prime Minister's Secretariat. Ministry of Labour and Manpower is also concerned with skill training. These ministries are acting in distinct and diverse form one another and not in harmony to make the efforts wholesome and convergent. तो मुख्तरन ये है कि पाकिस्तान में कुछ 6-7 मिनिस्ट्रीज और नेफ्टेक और दूसरे इदारे मिलकर कोई हम आहंग कोशिशों के बगैर डिफरेंट अंदाज में तालीम की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये नाकामी हुई और उसमें हमें पॉलिसियाँ नाकाम हुई क्योंकि इन इदारों में आपस में कोई तावन कोऑर्डिनेशन नहीं था। प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स आर इन ट्रांजिशन एंड देयर आर नंबर ऑफ इशूज नीडेड टू बी एड्रेस्ड. द मेन प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेड ऑफ फंक्शनल डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स. चूँकि सूबों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कायम करके सूबाई अटानमी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कायम की गई, जिसके जो अभी इब्तदाई मराहल में थे और जिनके नफाज में बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे और ख़ुसूसन तालीम के मैदान में हमेशा ये तजर्बात किए जाते रहे, जिसकी वजह से एजुकेशन को बहुत नुकसान पहुंचा. और लोकल गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड यूनियन. The local government has 3 tiers: district and tehsil and union. School education is primarily the responsibility of district government, and the current causes of lack of coordination between 3 tiers needed to address by the district governments. The local government system decentralization in education has failed to percolate to schools. Governance and management of education at local level needs to recognize the role of community can play. Parent-teacher association and civil society organization within a formal though limited structure can be contributed to a more accountable delivery system. So ये जो local governments और district तहसील unions level पर जो निज़ाम तालीम था, इसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी और पेरेंट टीचर एसोसिएशन और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और जो कम्युनिटी को इसमें अपना हिस्सा अदा करना था, उसमें अभी तक पूरी वो कोशिशें नहीं हुई और अभी इसमें ज़रूरत है इनकी. सो एजुकेशन फाइनेंसिंग. Education, the lion's share of funds are provided through federal revenues, which are distributed to provinces under the National Finance Commission. The shared distribution of provinces must recognize the size of investment needed to be made in the field of education.
The provincial revenues themselves constitute a partly percentage of 10% of actual requirement. The district receives the money through Provincial Finance Commission, and the capacity of districts to mobilize funds is even more constrained. यानी बहुत सी इसमें मुश्किलात हैं. In line with the budgetary design, the education budget is divided along the development and non-development or recurring budget. यानी जो सैलरीज बजट है और जो डेवलपमेंट बजट है इसमें तकसीम होता है. द रिकरिंग बजट कंसिस्ट ऑफ सैलरीज एंड नॉन सैलरी कंपोनेंट्स वेयर द सैलरी टेक्स अप द मेजर शेयर ऑफ द टोटल रिकरेंट बजट. यानी जो रिकरेंट बजट है तकरीबन उसका 80% सैलरीज पर मुश्तमिल होता है. और प्रेजेंटली द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू make an investment of 4% of GDP in education sector. It must be ensured that in the time frame of 8 to 10 years. So investment in the range of 6% of GDP must be planned and committed in the field of education. लेकिन अभी तक ये हो नहीं सका. और political interference and corruption. Unfortunately, in Pakistan, corruption continues despite many efforts by the government. So education is not spared. Corruption and political interference have had the most negative impact on the sector. The majority of stakeholders are of the view that recruitment, transfer and postings of teachers heavily influenced by political intervention, the degree varying in the various parts of the country. So in fact it appears that the malices or malpractices have been similar under the successive regimes over the last 3 decades, and corruption in appointment process further leads to lopsided student evaluation and the advancement of the underserving. So it means इसमें करप्शन बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी तालीमी अमन को और तालीमी तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है. क्वालिटी. The term quality of education has been used in document and policy written on education in Pakistan. Periodically, in perception of most stakeholders, quality is linked with the ability to speak and read and write. Anything that helps students gain a foothold in the market or elevates the social status is considered quality. Defining quality is elusive, यानी ये एक मुबहम है, बट यानी मुश्तरका कोई मुतफिका डेफिनेशन नहीं है क्वालिटी की, बट सम पैरामीटर्स विल नीड टू बी ड्रॉन. सो देयर इज एन impending need to debate and agree on with the constitute quality at each stage of education and the system overall. Based on this, some standards will need to be defined and pursued through development policies, strategies and plans which target them. So quality education के लिए नए टारगेट्स और वो सारी चीज़ें बयान करने की, बताने की ज़रूरत है. और टीचर्स की क्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाद में 2009 में स्टैंडर्ड्स, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स नाफिज किए. पिलर्स ऑफ क्वालिटी. मोस्ट इनपुट्स इन द सिस्टम कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी. हाउएवर देयर आर 5 बेसिक pillars that have the major share: curriculum, textbooks and learning materials, administrative issues, assessment and learning environment. So ये 5 pillars हैं जो इसमें एड्रेस किए गए. Equity. According to UNESCO in 1960, and any distinction, exclusion, limitation or preference which being based on race, color, gender, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic condition as the purpose or effect of damaging equality of treatment in education. यानी इक्विटी से मुराद ये है कि जो पसमानदा तबके हैं उनको तरक्की याफ्ता तबकों के बराबर लाना, जो मार्जिनलाइज तबके हैं उनको भी ख़ास तौर पर जो अक़लियतें हैं उनको भी, और या रूरल इलाकों में सहूलियात के लिहाज से उनको
और फिर जो ख़वातीन हैं जेंडर की बुनियाद पे वो चूँकि पसमानदा है उनको भी बराबर लाना। और ये सो इक्विटी मज़ीद ये इसमें द कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन हैज़ नॉट बिन रेटिफाइड बाय पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने उसको नहीं माना। although constitutionally all citizens are equal before the law, in the practice there is discrimination in various forms in education system, mostly due to social customs and poor implementation of education programs. Poor children, girl students from rural areas and students from minorities are particularly affected by the inequalities in Pakistan and inequalities in the education system. So we need to look at both equality and equity. Equality mean barabari or equity mean need base. So in public and private education, focusing on institutions and students. So it is our purpose to address issues in gender of economic and geographic disparities. यानी जो जोग्राफिया इलाकाई डिस्पैरिटीज़ हैं यानी अदम तवाज़न है, and parallel systems of education and medium of instructions, especially teaching of English language. So dear students, ये यहाँ तक तो जो इसमें ये जो वाइट पेपर है तकरीबन इसके आधा सेशन मैंने इसके आधे पॉइंट्स इस सेशन में मैंने कवर किए। अब मेरा अगला जो सेशन होगा लेसन नंबर 23 वो मैं इस पे फोकस करूँगा इसके वाइट पेपर के बकिया हिस्से पर। और अब तक जो मैंने वाइट पेपर के जो ऑब्जेक्टिव्स थे या जो उसके टारगेट्स थे जो पाकिस्तान में एजुकेशन के इश्यूज थे और जो पॉलिसीज़ बनाने के हवाले से जो पॉलिसी और प्लान्स टारगेट्स जो थे उनके अधूरे रह जाने की जो वजूहात थी, और फिर जिस वाइट पेपर जो बुनियाद बना हमारी 2009 की पॉलिसी में का, और इसमें हमारे जो 1998 की पॉलिसी के बाद जो सूरत हाल थी उस सिलसिले उसकी एवेल्यूशन की गई। और ये जो वाइट पेपर है बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है जो बुनियाद बना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 का। और ये 2006 में पहली दफ़ा इसको किया गया, फिर 2007 में इसका रिवाइज्ड वर्जन आया। और सो इंशाल्लाह इसके बकिया हिस्से में मैं नेक्स्ट अपने इलेक्शन में बात करूँगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।